السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک لینگویج کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ عربک لینگویج کے قواعد میں سے مرکب اضافی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلی کلاسوں میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا مرکب توصیفی، جس میں سے ایک آپ کا موصوف بن رہا تھا اور دوسرا آپ کا صفت۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے مرکب الاضافی، یعنی دو اسم ہوتے ہیں، اس میں سے ایک مضاف بنتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ۔ اب ہم کلاس شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری انفارمیشن ہے کہ آپ کو جو کلاس پڑھائی جا رہی ہے اس کی پی ڈی ایف آپ کو مل سکتی ہے ٹیلی گرام چینل نظام اکیڈمی 22 سے ریویژن کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ آپ سیشن کو، آپ کلاس کو لائک بھی کیجئے اور کمنٹ بھی کریں، اس کے ساتھ دوستوں میں اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اب آگے ہم لوگ کلاس کی طرف آتے ہیں کہ آج کیا پڑھیں گے؟ مرکب الاضافی۔ سب سے پہلے ان کی مثالوں کو، ان کے اگزامپل کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ کالم اے میں لکھا ہوا ہے قصر الامیری۔ کیا لکھا ہے؟ قصر الامیری۔ قصر معنی ہوتا ہے محل یعنی پیلس۔ قصر الامیری یعنی دا پیلس آف دا پرنس، یعنی جو شہزادہ، پرنس کے لیے شہزادہ یعنی راجکمار، شہزادے کا محل قصر الامیری۔ تو اس میں قصرو آپ کا کیا ہے؟ قصرو آپ کا مضاف بنے گا اور الامیری یہ آپ کا مضاف الیہ بنے گا۔ دوسری مثال آپ لیجئے، بیتو ساجدن۔ بیتو ساجدن، اس میں آپ کا بیتو کیا ہے؟ بیتو آپ کا مضاف ہے اور دوسرا ساجدن آپ کا مضاف الیہ ہے۔ عربک زبان میں ہم مضاف کی نسبت مضاف الیہ کی طرف کرتے ہیں۔ انگلش میں اس اضافت کو جوڑنے کے لیے ہم پری پوزیشن آف کا یوز کرتے ہیں۔ اس کو آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے، آف کا یوز کرتے ہیں، آف۔ اور ہندی یا انگلش میں کا کی کے نسبت جوڑنے کے لیے کا کی کے، جیسے بیتو ساجدن، ساجد کا گھر، تو دا ہاؤس آف ساجد، انگلش میں آف کا یوز کیے۔ آپ اگر انگلش زبان جانتے ہیں تو آپ دیکھے ہوں گے نسبت کے لیے کہیں کہیں اپوسٹرافی ایس لگتا ہے۔ اس کے بارے میں ڈسکس ہم اگلی سلائیڈ میں ڈیٹیل سے کرتے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے کوخ فقیرن۔ کوخ معنی ہوتا ہے جھوپڑی یعنی نٹ۔ تو اب نسبت کے لیے دا نٹ آف اے پور، دا نٹ آف اے پور۔ پور مطلب غریب وقت، فقیر، کیونکہ آپ کا جو مضاف الیہ ہے یہ آپ کا نکرہ ہے، اس لیے ہم نے انگلش زبان میں آرٹیکل میں سے اے کا یوز کیا۔ دا نٹ آف اے پور یعنی ایک غریب آدمی کی جھوپڑی۔ آگے ہے یدو طفلن۔ طفلن بھی آپ کا نکرہ ہے، اس لیے اس پہ تنوین آئی ہے۔ تو یدو طفلن یعنی ایک بچے کا، ایک لڑکے کا، بوائے لکھا ہوا ہے یہاں، چائلڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں،
ایک بچے کا کیا ہے؟ ہاتھ۔ اب تیسرے کالم میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کرۃ القدمی۔ کرۃ مضاف، قدمی مضاف الیہ، لیکن جب اس کو ہم انگلش زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے تو ڈائریکٹ کیا کہہ دیں گے؟ فٹ بال۔ یعنی یہاں مضاف مضاف الیہ کی اضافت کو بتانے کے لیے ہم آف کا یا اپوسٹرافی ایس کا یوز نہیں کرتے، بلکہ ان کو ملا کر کے ایک ورڈ بنا دیتے ہیں، جیسے دا فٹ بال۔ کیونکہ انگلش زبان، چاہے آپ برٹین کی انگلش لیجئے، یو کے والی، یا یو ایس اے یعنی امریکن والی لیجئے، جس طرح وہ لوگ اس کا یوز کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی اس کا یوز کریں گے، اس میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے۔ یہی قاعدہ عربک زبان کا بھی ہے، اہل عرب جس طرح اس کا یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اس کا استعمال کرنا سیکھیں گے۔ تو کرۃ القدم عربک میں اہل عرب اس کو مضاف مضاف الیہ بنا کے یوز کرتے ہیں، لیکن انگلش میں اس کو فٹ بال کہتے ہیں۔ تو کرۃ القدمی، دا فٹ بال۔ اسی طرح آپ دوسری مثال دیکھیں گے، قلم حبرین۔ حبرین یعنی انک، یعنی روشنائی سیاہی کے لیے آتا ہے۔ دا انک پین، ملا کر کے ہم نے کہہ دیا انگلش میں، بلا کسی نسبت کے، بلا کسی آف یا اپوسٹرافی ایس کے، قلم حبرین۔ لیکن عربک میں جب کہیں گے تو قلم مضاف، حبرین مضاف الیہ۔ اب ان 6 مثالوں میں ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کا جو اسم، جو لفظ، جو ورڈ مضاف بنے گا عربک زبان میں، اس پہ کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس پر ہم تنوین بھی نہیں لاتے ہیں۔ دو چیز، الف لام نہیں آئے گا، اس کے ساتھ ہم اس پر تنوین بھی نہیں لاتے ہیں۔ اب آگے ہم اگلی سلائیڈ میں چلتے ہیں۔ اب جو کچھ ہم نے اس ٹیبل میں پڑھا ہے، ان سنٹینس میں ہمیں کن کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، کن کن چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اس قاعدے کو، مرکب اضافی کو سیکھنے کے لیے اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم جائزہ لیتے ہیں، وشلیشن کریں گے، اس کا تحلیل کریں گے، انالائز کرتے ہیں۔ جیسا اس میں کہا جا رہا، آپ نے پڑھا ہے، آپ کا کالم اے تھا اور بی تھا۔ اس میں کیا ہے، اس میں فرسٹ کا ریلیشن یعنی اس کا سمبند، اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ دکھایا گیا ہے، یعنی مضاف کی نسبت مضاف الیہ کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے کہا گیا ہے پیلس، یعنی جو قصرو آیا تھا پیلس، اس کی نسبت کس کی طرف تھی؟ امیر کی طرف، یعنی قصر الامیری۔ تو قصر یعنی جو محل ہے، اس کا تعلق، اس کا سمبند، اس کا ریلیشن کس سے؟ ہم الامیر سے سیٹ کرتے ہیں، امیر کی طرف کرتے ہیں۔ دوسری مثال ہم نے پڑھا تھا بیتو ساجدین۔ اب دیکھیے، بیتو مانے ہاؤس ہوتا ہے، ہاؤس کا تعلق یعنی ہاؤس کی نسبت کس کی طرف گئی؟ ساجد کی طرف۔ اسی طرح آپ جتنے بھی مثال ہیں عربک زبان کے یعنی مضاف مضاف الیہ کے، آپ اس میں اس نسبت کو بٹھا سکتے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، اس میں سے ایک مضاف بنتا ہے، دوسرا مضاف الیہ بنتا ہے۔ اس کو عربک زبان میں مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیں، مرکب اضافی۔ اگر انگلش میں دیکھیں گے تو اس کے لیے آئے گا جینیٹو فریز، کیونکہ ایک فریز ہوتا ہے، ایک یعنی چند الفاظ کو ملا کر کے ایک جملے کا ٹکڑا، یعنی مرکب ناقص ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کہنے سے سننے والے کو پوری بات نہیں ملتی۔ تو مرکب الاضافی، اسی طرح مرکب توصیفی جو تھا، یعنی مرکب وصفی، یہ بھی مرکب ناقص کی ایک قسم تھی۔ تو اسی طرح مرکب اضافی جینیٹو فریز ہوتا ہے، پورا واقع نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیں گے مرکب اضافی میں یہ جو پہلا پارٹ ہے، یعنی جو مضاف بنتا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاف یعنی پوزیسڈ۔ اور دوسرا پارٹ ہے، اس کو ہم مضاف الیہ یعنی پوزیسر کہتے ہیں۔
और इनके रिलेशन को, इनके संबंध को हम क्या कहते हैं? इजाफा यानी इजाफत कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इस बारीकी को आपने समझा होगा। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, अगर ना समझ में आए तो आप लोगों को पीडीएफ भी मिलती है, आप पीडीएफ से उसका रिवीजन करिए, ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए। अब देखिए, जो मुरक्कबे इज़ाफ़ी है, एक मौसू, एक मुज़ाफ, दूसरा मुज़ाफ़िल है, इसका जब हम ट्रांसलेट करते हैं, इसका जब हम तर्जमा करते हैं, तो इंग्लिश ज़ुबान में इस निस्बत को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अपॉस्ट्रोफी एस भी लगता है। आप देखिए, जैसे लिखा हुआ है कसरुल अमीरी द पैलेस ऑफ द प्रिंस, ऑफ का यूज़ किया। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं द प्रिंसेस पैलेस, यानी शहजादे का महल। तो हम ऑफ का भी यूज करते हैं और प्रिंसेस पैलेस यानी अपॉस्ट्रोफी एस का भी यूज करते हैं। अच्छा, एक बारीकी को आप याद रखिएगा, अगर ऑफ का यूज करेंगे तो पहले मुजाफ, उसके बाद ऑफ, उसके बाद मुजाफिले। लेकिन अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो जो आपका मुजाफिले यानी जिसके तरफ आप निस्बत ले जा रहे हैं, रिलेशन बिठा रहे हैं, उसको पहले लाते हैं, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, उसके बाद पैलेस। जैसा कि आपने देखा प्रिंस यहाँ पहले आ गया क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस के जरिए इसका हम रिलेशन बिठा रहे हैं, रिलेशन कायम कर रहे हैं। और यहाँ क्या है? यहाँ ऑफ के जरिए, इसलिए प्रिंस बाद में आया। दूसरी मिसाल लीजिए, यदु तिफलिन, तिफलिन नकीरा है, तो द हैंड ऑफ अ चाइल्ड, इसको अ चाइल्ड्स हैंड भी कह सकते हैं। लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस के लिए एक कायदा यानी एक रूल इंग्लिश लैंग्वेज का है कि अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगाएंगे, कहाँ ऑफ लगाएंगे। तो जो भी किसी का नाम, किसी पर्सन का नेम या किसी एनिमल का नेम है, उसकी निस्बत में मुजाफ मुजाफिले में हम उसको जिक्र करके, यानी किसी पर्सन के नेम या किसी एनिमल के नेम को जिक्र करके अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके फिर उसके बाद दूसरा नाउन लाते हैं। जैसे बैतु खालिदिन था, तो पहले खालिद लिखेंगे, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस और उसके बाद हाउस लिखेंगे। यही कायदा सही है क्योंकि वो इंग्लिश का है। अब उसमें ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, बस इतना आप बारीकी समझ लीजिए। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। इसमें हमें और किन चीज़ों को जहन में रखना है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मुरक्कबे इज़ाफ़ी, मैंने पहले भी बताया कि मुरक्कबे इज़ाफ़ी का पहला पार्ट क्या होता है? मुज़ाफ होता है। मुज़ाफ पे दो चीज़ कभी नहीं आएगी, इसको आप गांठ बांध लीजिए, इसको आप जहन में रख लीजिए ताकि कहीं भी आप इसमें गलती ना करें। पहली चीज़ क्या है? आप अलिफ लाम नहीं लाएंगे, मुज़ाफ पे अलिफ लाम नहीं लाएंगे। इसी के साथ मुज़ाफ पे आप तनवीन नहीं लाएंगे जिसमें नून का साउंड होता है, जैसे गुलामुन, रजुलुन, इस तरह आप नहीं कहेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको जहन में रखना है कि दूसरा पार्ट जो मुज़ाफिले है उस पे अलिफ लाम भी आएगा और उस पर तनवीन भी आएगी, यानी मुज़ाफ पे दोनों में से कुछ नहीं आएगा, लेकिन मुज़ाफिले पे दोनों आएगा। अब आगे आप देखेंगे द मुज़ाफिले इज ऑलवेज यूज्ड इन द जेनेटिव केस। जेनेटिव मतलब हालत जर्री में यूज होगा हमेशा मुज़ाफिले, क्योंकि मुज़ाफ के बाद जब मुज़ाफिले आएगा, जाहिर सी बात है जब उससे पहले, अब जब उसको मुज़ाफिले बनाएंगे तो उसको हम कसरा ही पढ़ेंगे। उसकी हालत यानी हालत एराब की हालत जेनेटिव केस होगी, नोमिनेटिव केस नहीं होगी। क्या होगी? वो हालत जर्री होगी, विच इज जनरली इंडिकेटेड बाय अप्लाइंग कसरा, क्योंकि उस पर हमेशा क्या आएगा? कसरा यानी जेर आएगा। मिसाल लीजिए, जैसे लिखा है कसरुल अमीरी, कसरू पे ना अलिफ लाम है और ना ही तनवीन है।
आगे देंगे अमीर जो है मुज़ाफ इलैह है, इस पर अलिफ लाम भी है, आखिर में ज़ेर भी है। दूसरी मिसाल लीजिए, यदु तिफलिन, यदु क्या है, मुज़ाफ है, ना इस पे अलिफ लाम है और ना ही तनवीन है। दूसरी तिफलिन, ये जो है आप देखेंगे इस पर तनवीन आई है और हालत जर्री में है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा, नहीं तो अक्सर लोग इसके एराब लगाने में वावल साइन जब लगाते हैं, जब इसके एराब लगाने के लिए कहा जाता है तो अक्सर लोग एक गलती करते हैं, क्योंकि अरबिक में जितने भी जुमले हैं या तो मुरक्कब वसफ़ी होगा। अगर आपने मुरक्कब वसफ़ी को और मुरक्कब इज़ाफ़ी को पहचान लिया तो आपने गोया कि अरबिक ज़ुबान को समझ लिया। अब आगे हम इसमें मज़ीद चीज़ों को जहन में रखेंगे कि ये जो आपका मुज़ाफ इलैह है, मुज़ाफ इलैह, वावेल साइन ऑफ मुज़ाफ इलैह इन मुरक्कब इज़ाफ़ी में इज डिसाइडेड द मुज़ाफ इज टेंटेटिवली गिवन ज़म्मा। आपको मालूम है मुज़ाफ पे ज़म्मा आएगा, उसके बाद मुज़ाफ इलैह हमेशा कसरा आएगा। तो कहते हैं जो मुज़ाफ है, मुज़ाफ का एराब अपने हालत पे डिपेंड करेगा। जिस हालत में मुज़ाफ बनेगा, अगर हालत रफ़ई में बन रहा है तो पेश आएगा, ज़म्मा आएगा। हालत नसबी में बन रहा है तो ज़बर आएगा। हालत जर्री में बन रहा है तो ज़ेर आएगा, लेकिन उस पे आप अलिफ लाम और तनवीन नहीं लाएंगे। और मुज़ाफ इलैह हमेशा ज़ेर ही आएगा, उस पे तनवीन भी आ सकती है। यही चीज़ इसमें बताया जा रहा है। द वावेल साइन ऑफ मुज़ाफ विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ मुरक्कब इज़ाफ़ी, यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी की पोजीशन क्या है, किस हालत में वो आ रहा है। द होल इन द सेंटेंस, जैसे मुब्तदा बन रहा है या खबर बन रहा है या फ़ाइल बन रहा है या मफ़ऊल बिही यानी ऑब्जेक्ट बन रहा है। उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। अब हम मज़ीद इसके बारे में और इंफॉर्मेशन लेते हैं। हमने कॉलम ए कॉलम बी दोनों को देखा, अब कॉलम सी का एनालाइज करते हैं। कॉलम सी में हमें किन बातों को जहन में रखना ज़रूरी है। कॉलम सी क्या था, अरबिक में मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की तरह यूज़ कर रहे थे, लेकिन इंग्लिश में उसको बाकायदा एक वर्ड बना करके यूज़ कर रहे थे। इसको भी जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। यानी उसका ट्रांसलेशन हम ऑफ या अपॉस्ट्रॉफी इसके ज़रिए नहीं करेंगे। मिसाल आप लीजिए, कुरतुल कदमी, लफ्ज़ी तर्जमा क्या बनेगा, द बॉल ऑफ द फुट, यानी कदम यानी पैर के का बॉल। ये चीज़ रॉन्ग है, लेकिन कहते क्या है, द फुटबॉल। इसी तरह दूसरी मिसाल हमने ली थी, कलम हिब्रिन, अ पेन ऑफ इंक, ये गलत है, यानी इंक पेन ही कह देंगे। तो इस तरह की इजाफत ऐसी है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते। अब आज के बाद से आप कोई भी जुमला, कोई भी ट्रांसलेशन जब आप अरबिक का इंग्लिश, इंग्लिश का अरबिक में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा कि कहाँ इसका तर्जमा ऑफ के ज़रिए होता है, कहाँ इसका तर्जमा अपॉस्ट्रॉफी एस के ज़रिए होता है, अब कहाँ इसको मुस्तकिल एक वर्ड बना के यूज़ करते हैं, इसमें ऑफ या अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। अगर इसको आप जहन में रखते हैं तो आप मुरक्कब इज़ाफ़ी के ट्रांसलेशन में गलती नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि हम लोगों का ज़ाब्ता है कि पहले हम लोग उसको सीखते हैं, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके हम मश्क नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, उसके एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो चीज़ 100% हमारे दिमाग में नहीं बैठेगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं।
देखिए एक्सरसाइज आप लोग खुद पीडीएफ से कीजिएगा। अब यहाँ क्योंकि क्लास में आप लोग डायरेक्ट जुड़े नहीं हैं, मैं इसका तर्जमा, इसकी एक्सरसाइज खुद करता हूँ आप लोगों को के आसानी के लिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ ले करके पहले खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर ना समझ में आए तब उसको देखिए, ताकि लर्निंग बाय डूइंग आपकी हो, आप करके सीखें। मैं तो एज अ फैसिलिटेटर के तौर पे रहूं, तभी आप ज्यादा सीखेंगे। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। लिख, अब देखिए इसमें एक मुजाफ है, दूसरा मुजाफिल है। जो कुछ हमने नियम, जो भी रूल बताया है कि मुजाफ पे अलिफ्लाम नहीं आएगा, मुजाफ पे तनवीन नहीं आएगी, इन सब चीजों को आप जहन में रखते हुए एक्सरसाइज कीजिएगा। देखिए गुस्नु शजरिन, गुस्नु यानी बरांच टहनी के लिए आता है, तो हम गुस्नु का तर्जमा पहले करते हैं। अब गुस्नु का तर्जमा पहले करेंगे तो मुजाफ पे हम इंग्लिश में दा का यूज करते हैं, क्योंकि जहां ऑफ लगता है उमूमन आर्टिकल में से ऑफ से पहले वाले सेंटेंस पे हम दा का यूज करते हैं। उसके बाद वाले पे भी करते हैं, लेकिन बाद वाले को छोड़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश का रूल ये है कि ऑफ से पहले अक्सर, ऑफ से पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब देखेंगे गुस्नु, तो हम क्या यूज करेंगे, द आ गया। आगे क्या है, गुस्न के लिए ब्रांच, अब निस्बत बयान करने के लिए मैंने बताया था ऑफ या अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, यहाँ ऑफ यूज करेंगे क्योंकि ना किसी का नेम है और नहीं किसी का नेम नहीं है, एनिमल या किसी पर्सन का। द ब्रांच ऑफ, अब शजरिन ए नकीरा है तो आर्टरी कह देंगे, ट्री यानी दरख्त, द ब्रांच ऑफ अ ट्री। दूसरा क्या है, शातिउन नहरी, शातिउन यानी जो नदी वगैरह का किनारा होता है उसको शातिउन कहते हैं। उसके लिए इंग्लिश में शोर का लफ्ज आता है, तो हम कहेंगे द शोर। अब निस्बत के लिए ऑफ का यूज करेंगे। अन्नहरी अलिफ्लाम के साथ है तो हम दा का यूज कर देते हैं, ऑफ द रिवर। हदी, तीसरा क्या है, हदीकतु महमूदिन, महमूद का बागीचा। अब यहाँ महमूद किसी व्यक्ति का नाम है, इसके ट्रांसलेशन में हम पहले महमूद लाते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस किस तरह लिखते हैं, यहाँ हम एक कॉमा देंगे और लिखेंगे एस। महमूद अब क्या है, हदीका गार्डन। आगे क्या है, वलामुल लैली, वलामुल लैली यानी रात की तारीकी। तारीकी के लिए क्या लफ्ज आता है, डार्कनेस, तो हम पहले दा का यूज करते हैं, दा। उसके बाद ऑफ, लैल के लिए नाइट। यानी रात की तारीकी। आगे क्या है, सेवारू फिज़्ज़तिन, सेवार कंगन के लिए यूज होता है। सेवारू फिज़्ज़तिन, फिज़्ज़त क्या है, सिल्वर यानी चांदी के लिए, तो हम सेवार के लिए क्या लफ्ज लाते हैं, द ब्रेसलेट।
द ब्रेसलेट, उसके बाद निस्बत के लिए ऑफ, फिज़्ज़ा सिल्वर, ऑफ सिल्वर। जी, एक एक्सरसाइज हुई, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रिवीजन के लिए आप। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे दूसरी एक्सरसाइज है, आपकी यही मुज़ाफ मुज़ाफिले की तरकीब इंग्लिश लैंग्वेज में, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे मुज़ाफ मुज़ाफिले के कायदे को जहन में रख के एराब के साथ। अब क्या है, द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यानी जो फ्रिज है जो घर में हम यूज करते हैं उसका दरवाजा। तो पहले हम मुज़ाफ लाएंगे, तो क्या कहेंगे, बाबू। फ्रिज के लिए सल्लाजा, जती आएगा क्योंकि मुदाफिला है, इस पे कसरा आएगा तो ए पेश आएगा। द कलर ऑफ द शर्ट, शर्ट यानी कमीज, कलर यानी लौन, तो क्या कहेंगे हम, लौनुल, लौनुल कमीसी। आगे क्या है, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। आपने देखा यहां कोई इजाफत नहीं क्योंकि इस तरह इंग्लिश में यूज होता है जैसे फुटबॉल। मॉर्निंग वॉक, ना अपोस्ट्रोफी एस है ना ही ऑफ है। अब हम इसका ट्रांसलेट जब अरबिक में करेंगे तो हम कह देंगे मशयु सबाही। सबाही। आगे है द सन ऑफ अ फार्मर, सन बेटे के लिए, तो क्या कहेंगे, इब्नु। अब फार्मर के लिए क्या कहते हैं, फल्लाहुन यूज होता है, हालत मुजाफिला है इसलिए फल्लाहिन कहेंगे, इब्नु फल्लाहिन। द कार ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक, उसके लिए अरबिक जुबान में मुदीर का लफ्ज आता है। क्या आता है, मुदीर। तो हम कहेंगे सय्यारतु अल मुदीरी, सय्यारतुल मुदीरी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। इस एक्सरसाइज में आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ कलिमा दिए गए हैं, इनको आप मुरक्कब इजाफी की तरकीब यूज करते हुए 5 जुमले बनाने हैं। अब है पहला यौम, तो हम इसको इस्तेमाल कर देंगे पहले में। अब इसको अगर हम मुदाफ बनाते हैं यौमू को, तो अलिफ लाम हम यहां से हटा देंगे, तो क्या कह देंगे, यौमु। अब आगे हम क़यामत का लफ्ज ले आते हैं, यौमुल क़ियामा यानी क़यामत का दिन। इसी तरह हम कह सकते हैं यौमुल अहदी, ये संडे को हम यौमुल अहद कहते हैं। दूसरा क्या है, अलबैत, हम बैत को यूज कर लेते हैं, जैसा कि पहले मैंने पढ़ा था, बैतु
हामिदीन कह सकते हैं या खालिदीन, कुछ भी कह दें। तीसरा है अल्फिज़्ज़ा। फिज़्ज़ा हम ले आते हैं सेवारुल, कंगन के लिए, सेवारुल फिज़्ज़ती। आगे है इस्मु। इस्म मतलब नेम होता है, अलिफ लाम को हटा देंगे, हम क्या कहेंगे, इस्मु, इस्मु रजुल, यानी आदमी का नेम। पांचवा क्या है, हम सुंदूक छोड़ देते हैं, असमा का यूज कर लेते हैं, क्या कह देंगे, लौनु, क्योंकि हमें 5 ही करना था। लौनुस समाई, लौनुस समाई। उम्मीद है कि तीनों एक्सरसाइज आपके समझ में आई होगी। आज के क्लास में हमने एक नई एक्सरसाइज, एक नया लेसन सीखा है। इससे पहले मेरा था मुरक्कबे तौसीफ़ी वसफ़ी, आज हमने पढ़ा मुरक्कबे इज़ाफ़ी। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आएगी। अब जाने से पहले एक चीज़ है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि पहले भी बताया गया था। आपका फ़र्ज़ बनता है क्लास करने के बाद आप लाइक करके इसको जाएं। इसी के साथ आप कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सुझाव हो दे सकते हैं। आप दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।